हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी बैंड इन सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो हम इससे पहले पढ़ चुके हैं वो ये कल्पना करती है कि कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन ए मेटल एक्सपीरियंस अ कांस्टेंट और जीरो पोटेंशियल एंड सो completely free to move about the crystal and restricted only by the surface of the crystal. It means this theory explains the phenomena of electrical conductivity, spin paramagnetism, specific heat, etc. But free electron theory cannot explain or cannot distinguish between metal from a non-metal. The resistivity of a good conductor at low temperature may be 10 to power minus 8 ohm centimeter, and that of a good insulator may be 10 to power 22 ohm centimeter. So this relation between resistivity of a conductor and of a good conductor cannot be explained on the basis of free electron theory. Other semiconductor do not find any explanation on the basis of this theory. So these two postulates, one is distinguish between metal and non-metal, and other is properties of semiconductor cannot be explained on the basis of free electron theory. So the shortcoming of this theory are to be traced in the oversimplified potential on which it is based. If we consider the motion of free electron under the influence of periodic electrostatic force of positive ion cores of solids, they form energy band in solid, or in another words, potential experienced by the electron in passing through the crystal is not zero or not constant, but perfectly periodic with the period of the lattice. One-dimensional representation of the potential experienced by an electron in a perfectly periodic lattice of lattice constant A is shown in figure. So green line and dotted line, which is represented by blue, show a periodic potential of a single electron, and when two electron or when two atom comes close together to form molecule, then the common wall of periodic potential is reduced. Figure show three periodic potential for three atoms. So at the surface potential energy is high, and at the nucleus, near the nucleus, potential energy is low. It may be thought of as arising from the periodic distribution of the positive charge associated with the ion cores situated on the lattice sides, plus the constant contribution due to all other free electron at the crystal. सरफेस पर पोटेंशियल के लिए अगर हम डायग्राम को देखते हैं तो सरफेस पर पोटेंशियल हाई है, और जो न्यूक्लियस के पास जो लो पोटेंशियल है, और जिसके कारण ये अट्रैक्टिव है, और इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के पास पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अधिक है। सरफेस से बाहर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो है। नाउ वी विल डिस्कस फॉर्मेशन ऑफ बैंड्स इन सॉलिड। सॉलिड के अंदर बैंड का निर्माण किस प्रकार होता है। The electrons in the atoms are distributed in different orbits, और इन अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन
अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुंड्स रूल के अनुसार होता है। इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई ऑर्बिट्स अकॉर्डिंग टू एनर्जी लीस्ट टू हायर, अर्थात कम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन निम्नतम ऊर्जा स्तर में भरे जाते हैं और जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती जाती है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तरों में भरते जाते हैं। द इलेक्ट्रॉन एट द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कॉल्ड वैलेंस्ड इलेक्ट्रॉन, और जो ऊर्जा स्तर होता है वो संयोजित ऊर्जा स्तर या वैलेंस लेवल कहलाता है। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर एट ए ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस कंपेयर टू द इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन। तो एक तो कि इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस कक्ष के इलेक्ट्रॉन नाभिक से ज़्यादा दूरी पे होते हैं बजाय अंदर वाले ऑर्बिट के। इसके अलावा ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, द कूलम्ब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूस्ड, अर्थात वैलेंस लेवल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं वो एक तो नाभिक से ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं अंदर वाले इनर ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में, और दूसरा अंदर वाले ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉनों के शील्डिंग इफेक्ट के कारण नाभिक और वैलेंस इलेक्ट्रॉनों के बीच में कूलम्ब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है। सो ड्यू टू द वीक बॉन्डिंग विद द न्यूक्लियस they can be easily separated from their parent atom by least thermal energy। थोड़ी सी थर्मल एनर्जी देने पर संयोजी कक्ष के इलेक्ट्रॉन अपने पेरेंट न्यूक्लियाई से मुक्त हो सकते हैं। इन मेटल्स these electrons move in the lattice structure about freely, almost freely, and are called free electrons। The other electron in the atoms being in the inner orbits are more strongly bounded with the nucleus and are called bound electron। अर्थात जो संयोजी कक्ष के इलेक्ट्रॉन हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और जो अंदर के इलेक्ट्रॉन हैं जो नाभिक से क्लोजली बंधे हुए हैं वो बाउंड इलेक्ट्रॉन या बद्ध इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। These bound electrons do not contribute to the electrical behavior of the material। सिर्फ जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो ही मेटल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाउ ये हमने जो जर्मेनियम एटम है उसके लिए एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व प्लॉट किया है। फॉर एग्जांपल जर्मेनियम हैज़ 32 इलेक्ट्रॉन्स विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2 एंड 4p2। अर्थात n बराबर 1 के लिए एक ऊर्जा स्तर है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है s में, n बराबर 2 के लिए 2s और 2p है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 6 इलेक्ट्रॉन है, n बराबर 3 के लिए 3 ऊर्जा स्तर हैं 3s2, 3p6 एंड 3d10, और जो बाहर वाला कक्ष है उसमें 4s2 और 4p2 यानी s में भी 2 हैं और p में 2 हैं। तो द फर्स्ट 3 लेवल्स आर कम्प्लीटली फील्ड इन अकॉर्डेंस विद पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड द फोर्थ ऑर्बिट विच इज़ आउटर मोस्ट ऑर्बिट, और सबसे लास्ट वाले में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 2 s में और 2 p में। अर्थात अंदर वाले सभी ऊर्जा स्तर भरे हुए हैं और बाहर वाला जो है वो आधा भरा हुआ है। इन ए सिंगल एटम द इलेक्ट्रॉन्स हैव ए नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस सो दैट द इलेक्ट्रॉन रिमेन्स बाउंड इन द पोटेंशियल फील्ड ऑफ द न्यूक्लियस। यानी ये जो फिगर 1 दिखाया गया है वो एक सिंगल एटम के लिए दिखाया गया है और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी यानी आकर्षीय है, तो वो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन को बांधे रखती है। अब अगर 2 एटम्स को पास लाया जाए, इफ़ नाउ 2 एटम्स आर ब्रॉट क्लोजर टू ईच अदर, देन द न्यूक्लियस ऑफ 1 एटम
is in the position to interact with the electrons of other atom. एक एटम का न्यूक्लियस और दूसरे एटम के आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों के साथ अन्योन क्रिया करता है. सो इस इंटरेक्शन के कारण, ड्यू टू दिस इंटरेक्शन, ईच एनर्जी लेवल ऑफ बोथ द एटम्स स्प्लिट इनटू 2 लेवल्स. ये आप डायग्राम में देखिए. जो न्यूक्लियस है, जो उनके ऊर्जा स्तर, इसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन जिसमें भरे जाने, वो पहले एक एक लेवल में था और अब स्प्लिटिंग हो गई है. हर ऊर्जा स्तर 2 ऊर्जा स्तरों में बंट गया है. ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अनुसार है. अर्थात अगर इनकी इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी जो है n बराबर 4 वाले में देखें तो 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसमें, और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अनुसार एक ऊर्जा स्तर में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते. तो यहाँ 4 होने के कारण ये ऊर्जा स्तर 2 भागों में बंट जाता है. कहने का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा मूल ऊर्जा से अधिक हो जाती है और 2 की मूल ऊर्जा से कम हो जाती है. ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ द पोटेंशियल वेल, द कॉमन वॉल ऑफ इट गेट सप्रेस्ड एंड हायर एनर्जी लेवल बिकम कॉमन टू बोथ द एटम्स. दिस रिजल्ट्स ए ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर. सो कॉमन वाल सेम होने के कारण ये जो ऊर्जा स्तर था वो 2 भागों में बंट गया है. और इसी तरीके से अगर n ऊर्जा स्तर को पास में लाया जाए तो ये ऊर्जा स्तर n भागों में बंट जाएगा और इस तरीके से एनर्जी ऊर्जा बैंड का निर्माण होता है.